Um, Assalamualaikum, Ikra. how are you? Thank you so much for doing this with us. Thank you. The pleasure is all mine. Thank you. We're so excited to have you today with us, Maliha, and it's truly our pleasure that someone, from Pakistan as a women data engineer as well. We have done quite a few conversations with men in this field as well, but we really wanted to find some women and who are also doing very interesting work and, who are doing amazing work in this field as well. So we really wanted to talk to them. We're just going to wait 2 to 3 more minutes for some participants to join, and then we can start our conversation. I hope Okay. that's okay. Yeah, sure. Perfect. I think we can start the conversation, and this, webinar is also going to be on YouTube as well. So I think who couldn't join or who cannot join at this time, they can also watch this recording. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for joining. For all of you who have joined us today, this is Ikra Gilani from Atom Camp. Atom Camp, just a little about Atom Camp. Atom Camp is a EdTech platform. We promote interdisciplinary education, continuous learning. We also provide a lot of trainings, workshop, courses, boot camps in AI, data science, data engineering, and all the fields related to technology. We're trying to promote a continuous learning culture in Pakistan. We're trying to upskill and reskill workforce in Pakistan, and we're trying to bring more opportunities for youth in Pakistan and things that they can perhaps explore with this, booming technology and with all the opportunities that now data science, data engineering, AI offer. So today we're very, very excited to have Maliha with us. Maliha, I'm going to tell you guys a little about Maliha. She does a lot of cool things, but on top of all, she has been working for 3 years, right, at Bentley Systems as a data engineer. She has expertise in big data, cloud technologies, Python, SQL, Snowflake, Databricks, and उन्होंने बहुत सारे courses, credentials भी किए हुए हैं. And then she also has BS, CS actually from NUST. That's pretty cool. Actually, जब हमने LinkedIn पे search करना शुरू किया था for
women data engineers, and we really wanted to talk to them as well, and invite them to talk to the women and inspire them कि वो क्यों इस फील्ड में जा सकते हैं. तो मलिहा was also one of the name जो पॉप अप किए थे हमारे लिंक्डइन पे. वी वर सो प्राउड कि कोई पाकिस्तान से भी हमें इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आई होप मलिहा मैंने सब कुछ सम अप कर दिया, बट इफ देयर इज एनीथिंग कूल दैट लेफ्ट एंड आई डिड नॉट मेंशन, तो प्लीज हमारी ऑडियंस को बताएं, और आप बताएं कि डेटा इंजीनियरिंग बेसिकली होता क्या है, और मलिहा एज अ डेटा इंजीनियर क्या करती हैं. Yeah, sure, Ikra. So basically, I think एक major point है जो कि I mean शायद काफी लोगों ने मेरी प्रोफाइल पर देखा हो कि like I did a few internships in machine learning and then I shifted to data engineering. So machine learning तो मतलब basically during my like entire 4 years of NAST मेरा काफी interest था towards mathematics and then ultimately towards machine learning. But then like I mean I graduated in 2020, the famous COVID batch. तो उस दौरान ये हुआ कि काफी ज्यादा like data engineering की jobs demand में आई, and then I started understanding a bit about data engineering as well कि क्या है और किस तरीके से मतलब I mean for me it was a bit easier क्योंकि already like machine learning like already एक data field के अंदर and then transferring to another data field. So I think जो मैं start लेना चाहूँगी वो इस चीज़ से लेना चाहूँगी कि data engineers की demand या मतलब ऐसा क्या gap है इंडस्ट्री था like अभी भी है, लेकिन ऐसा क्या गैप है जो कि इंडस्ट्री के अंदर या बिजनेसेस के अंदर जिनके लिए मतलब जिस गैप को फिल करने के लिए उन्हें डेटा इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. बल्कि आई मीन काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि ये like almost every company is demanding like or like hiring for data engineers. they can अच्छे data engineers मिल नहीं रहे. So I think इसकी डिमांड स्पेशली सिंस कोविड काफी ज्यादा बढ़ी बिकॉज हम लोग ऑलरेडी लाइक पहले आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल जो कि लाइक इन प्लेस जाकर शॉपिंग करते थे लेट्स से, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ शिफ्ट हुए एंड लाइक मतलब ऑनलाइन फूड डिलीवरी एज वेल. तो जब लाइक क्योंकि सिंस कोविड हमारे पास मतलब रिजॉर्ट ही यही था कि लाइक हम यही कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते. सो उस दौरान में लाइक it was actually the boom of towards digital transformation. So उस टाइम पे जिस तरीके से हम लोग मतलब लाइक एज कस्टमर्स हम लोग वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहे थे और डिफरेंट एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो वो अल्टीमेटली एट द बैक एक डेटा ही जनरेट होता है. So वो data in its raw form is not I would say it's not as useful for like business owner or for like business people or for like data driven decision makers कि वो इसको use करके different मतलब recommendation engine let's say बना सकें और मतलब इसको data driven decision making में help हो जाए. तो एक एक वो एंड है कि जिस पे आपके कस्टमर्स हैं जो कि डेली मतलब सिंस कोविड जो है वो डेली यू कैन से पेटाबाइट्स और टेराबाइट्स ऑफ डेटा जो है वो डेली जनरेट हो रहा है. और दूसरी तरफ आपके जो बिजनेस साइड के लोग हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, दे डिमांड द काइंड ऑफ डेटा जिसके लिए उन्हें जिसकी बेसिस पे जो है वो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर सकें. जैसे हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर लाइक खुद भी देखते हैं कि लेट्स से अगर हमने कोई एक दो आइटम्स अपने शॉपिंग कार्ट के अंदर ऐड किए हैं तो हमें लाइक अचानक से पॉपअप मिलता है कि ओके डू यू लाइक वी आल्सो रिकमेंड दीज प्रोडक्ट्स टू गो अलोंग विद दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट. तो ये बेसिकली किस तरीके से हो रहा है क्यों ये बेसिकली इसी तरीके से है कि आपका जो डेली बेसिस पे डेटा है, कस्टमर्स का डेटा है, जिस तरीके से वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो सारा का सारा डेटा आपके डेटा बेसिस में स्टोर हो रहा है. एंड दूसरी तरफ ये एक गैप है जो कि डेटा इंजीनियर्स ने फिल किया कि वो इस डेटा को फॉर्मेट करके, इस डेटा को शेप करके
और इस डेटा को बेसिकली उन डेटा बेसिस से एक्वायर करके शेप करके डेटा साइंटिस्ट या एमएल इंजीनियर्स या डेटा एनालिस्ट उनको ये डेटा प्रोवाइड करें ताकि वो इस डेटा की बेसिस पे जो है वो फर्दर बिजनेस बिजनेस डिसीजंस ले सकें. सो ये बेसिकली एक गैप था. गैप आना शुरू हुआ क्योंकि पहले जो है वो इतना डेटा एसेट्स जनरेट नहीं हो रहा था जो लाइक सिंस कोविड एंड अभी भी जो है वो डेटा उस तरीके से जनरेट होना शुरू हुआ है. तो बिजनेस पीपल दे सेट के मतलब अब हम इस डेटा को यूज कर सकते हैं फॉर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग. पहले ये था कि ये मतलब लाइक सॉर्ट ऑफ काफी बड़ी कंपनीज में ये चीज थी. लेकिन अब क्योंकि लाइक मिड साइज कंपनीज में भी यही स्पेसिफिक जो है वो डिमांड आनी शुरू हो गई है. तो वो डिमांड जो है वो बेसिकली इसी वजह से आई है क्योंकि हम अब जो है वो टोटल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मूव कर रहे हैं. तो ये एक मेजर गैप था जिसको डेटा इंजीनियर्स अब फिल कर रहे हैं और इसी वजह से आप ये देखते हैं कि डेटा इंजीनियर्स की जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गई है बिल्कुल इसी वजह से. एंड आई थिंक मेरा डे टू डे बेसिस ओके सो मेरा बेसिकली ये होता है कि like every other data engineer, I work on data pipelines and डेटाबेसेस से इंटरैक्ट करना, डेटा एक्वायर करना, फिर आई ऑल्सो वर्क ऑन बिग डेटा. सो डिफरेंट स्पार्क जॉब्स को मॉनिटर करना, उनको जैसे अगर कोई जॉब फेल हो गई है उसको डीबग करना कि कैसे उसको सॉल्व करना है. एंड देन in my company I have also worked on like creating the entire end-to-end system for like to at the end to build dashboards as well. So ये भी एक थोड़ा सा एनालिस्ट की पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा काम मेरा था. अब नहीं है लेकिन पहले शुरू शुरू में आई ऑल्सो वर्कड ऑन दैट एज वेल. एंड आई Also, थिंक Maliha, आई जी. एम सो सॉरी, मुझे लगता है हम थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं फॉर आवर ऑडियंस. आई ऑनेस्टली अंडरस्टैंड कि जो डेटा इंजीनियर और आपने इतनी सारी बातें बताई, इट साउंड सो कॉम्प्लेक्स एंड एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग. सो आई मीन हम ये वाली चीजें तो गूगल कर सकते हैं, हम जाके ये देख सकते हैं कि अगर हम डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हम क्या क्या चीजें, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड लर्न. बट एट द सेम टाइम वो वेरी डायरेक्शनलेस इन टर्म्स ऑफ इज इट अ गुड फील्ड टू tap into for women especially. जैसे हमने बताया that you decided and you graduated during COVID days. So in during that time we noticed that there's a lot of women in tech and we can actually use tech to work from home as well. And I think that's a pretty great incentive for women to come into this field and then perhaps earn from the comfort of their home as well. So building on to that, Maliha, please tell us a little about what exactly is data engineering. If you were to break it down to a common person, a person who does not understand a lot about it, but would really like to learn this, so आप उनके लिए, please with some example or whatever you feel like would be ideal. आप explain करिए what exactly is data science. Sorry, data engineering. अच्छा सो बेसिकली डेटा इंजीनियरिंग अगर लाइक इन सिंपल टर्म्स ब्रेक किया जाए तो you acquire data from a database or from any website through scraping, and then you basically shape and transform that data and give that data to like your stakeholders. um, I mean, in some cases वो stakeholders data scientist होते हैं, in some cases वो stakeholders जो हैं वो आपके ML engineers होते हैं. So basically acquire data and transform data to a specific format जिसको आगे further data scientists या ML engineers इसको use कर सकें. So That's a basic terms में pretty, ये है. okay, please go ahead. सॉरी सो बेसिक टर्म्स में ये है लेकिन इसमें आई मीन इट साउंड्स सिंपल बट इसमें काफी चीजें आ जाती हैं. So like I mean they are a bit complex. I mean I won't go into detail much. Thank you, Maliha. I think that's a pretty simplified definition for someone to have an idea कि exactly होता क्या है अगर आप सीखना चाहते हो और सीखेंगे किस तरह, how are you going to learn it? It's a pretty, complex journey as well in itself, and you need to follow
रोड मैप, आप एक पाथ फॉलो करके ही परहैप्स पहुंच सकते हैं किसी एज अ फील्ड, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप अपने आप को कह सके, ओ नाउ आई एम a data engineer. So Maliha, building on to that, I think just आप, because obviously you're in the field, you have followed that path, you've learned all those things जो were necessary for anyone to become a data engineer and then perhaps land a job. तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि अगर आप not getting into too many details, सिर्फ अगर एक आप ओवरव्यू टाइप दे सकें अबाउट इट कि इन 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 केस समबडी वांट्स टू लर्न इट और वो जाना चाहते हैं, उन्होंने बैचलर्स कर लिया है परहैप्स, और अब वो चाह रहे हैं कि उनको जॉब मिले लेकिन दे डू नॉट हैव दो स्किल्स टू एक्चुअली गो फॉर इट, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगी कि व्हाट आर द स्किल्स दैट आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो 3-4 स्किल्स या बिगिनर्स के लिए जिनके दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर देम टू स्टार्ट, तो अगर आप उस पर थोड़ा सा बात कर सकें. अच्छा, सबसे पहले अगर तो लाइक इफ यू आर नॉट एक्चुअली फ्रॉम टेक फील्ड और फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग फील्ड, तो सबसे सबसे पहले तो यह है कि आप मतलब प्रोग्रामिंग सीखें. एंड आई थिंक द मोस्ट फेमस एंड लाइक in detail course is actually the CS50 from Harvard, जो and वो आपको मैंने खुद भी when I started my bachelor's in computer science, तो मैंने खुद भी first year में वहीं से start लिया था to actually learn programming. So I think I can vouch for CS50. काफी in detail and काफी अच्छे तरीके से आपको programming सिखाते हैं with hands-on exercises and projects as well. So आई थिंक फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपको अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आप प्रोग्रामिंग सीखें. एंड देन आई थिंक इट कुड बी लाइक एनी लैंग्वेज, लेकिन आई थिंक ज़्यादा इजी स्टार्ट जो है वो विद पाइथन है. एंड इन डेटा इंजीनियरिंग पाइथन है भी, मतलब पाइथन का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है. सो आई थिंक फर्स्ट इज पाइथन एंड देन एसक्यूएल. एसक्यूएल के ऊपर मैं जितना ज़्यादा एम्फसाइज करूँ उतना कम है, क्योंकि एसक्यूएल आपकी हर जगह यूज़ होती है इन पाइथन, सॉरी इन डेटा इंजीनियरिंग. बेशक आप स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब लाइक बेशक आप एक टेबुलर डेटा से डील कर रहे हैं या बेशक आप इमेजेस वीडियो से डील कर रहे हैं, आपके लिए मतलब एसक्यूएल इज स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक पाइथन, एसक्यूएल एंड देन गेट काफी ज्यादा, नॉट जस्ट फॉर डेटा इंजीनियरिंग, इन एनी टेक फील्ड आपके लिए गेट काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें मतलब प्रोजेक्ट्स को लाइक थ्रू वर्जन कंट्रोल जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन करना होता है. एंड देन आई थिंक आगे फर्दर अगर मैं बिल्ड अपॉन करूँ तो I would say maybe a containerization tool like Docker. Docker काफी important है, क्योंकि आपको डॉकर का काफी यूज केस है डेटा इंजीनियरिंग में. आई मीन काफी लोग कहते हैं कि डेवऑप्स में ही है, लेकिन डेटा इंजीनियरिंग में भी आपको जो है वो डॉकर काफी यूजफुल होता है. और उसके बाद आई थिंक देन अगर आप जैसे अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं जो कि एक स्पेसिफिक क्लाउड के ऊपर काम कर रही हैं, मतलब उनका सारे डेटा इंजीनियरिंग टास्क रोज के जो हैं वो एक क्लाउड के ऊपर डील हो रहे हैं, देन दैट स्पेसिफिक क्लाउड आई वुड से मतलब जो मोस्ट पॉपुलर है इसमें तीन, दे आर लाइक एजर, एडब्ल्यूएस, जीसीपी. AWS काफी ज्यादा यूज होता है इन मार्केट, एंड देन एजर है, और फिर उसके बाद GCP है. सो ये तीन हम हैं क्लाउड. सो अगर आपने मतलब बिल्डिंग अपॉन पे फर्दर आपको इनकी एटलीस्ट एज ए डेटा इंजीनियर आपको इनकी डेटा सर्विसेज का आइडिया होना चाहिए. तो और इसमें बेसिकली ये भी है कि हाँ ठीक है, मतलब ये सारे क्लाउड को अगर आपने सीखना है या प्रैक्टिस करना है तो यू रिक्वायर मतलब क्रेडिट्स, या मतलब दोज आर प्रीटी पेड, और उनकी सर्टिफिकेशंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं. लेकिन इसमें ये चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा था और मुझे खुद भी इसका काफ़ी लेट पता चला था
लेकिन ये है कि अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं एंड दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन क्लाउड, तो उनके पास बजट भी होता है, एंड समटाइम्स उन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप की होती है। जैसे अगर मैं बेंटले की बात करूं, तो बेंटले ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की हुई है, तो उस वजह से वी कैन लाइक वी कैन गेट द सर्टिफिकेशंस फॉर फ्री, एंड और हम मतलब आसानी से माइक्रोसॉफ्ट लर्न के पेज पर जाके आसानी से उनके कोर्सेज भी ले सकते हैं और उनकी हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। एंड दिस आल्सो लाइक गोज सेम फॉर एडब्ल्यूएस एज वेल। सो इस चीज से लोग घबराते हैं, लेकिन इस चीज से घबराना नहीं चाहिए। योर फर्स्ट टारगेट इज कि आप किसी ऐसी कंपनी में जाएं, एंड देन द नेक्स्ट इज के वो आपको बजट भी देते हैं, एंड इवन काफी कंपनीज हैं जो कि आपको मतलब रिफंड भी कर देती हैं ये सर्टिफिकेशंस एज वेल। सो ये आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप इज दिस, एंड देन फर्दर अपॉन अगर मैं कहूँ, तो अगर आप इसके बाद अगर आप बिग डेटा की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो देन देयर आर सर्टेन बिग डेटा सर्विसेज जो कि आप या टूल्स अगर मैं हाईलाइट करूं, जैसे सबसे पहले स्पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। का स्पार्क काफी ज्यादा यूज होता है मेरा। आई थिंक अगर मैं कहूँ तो मेरा आई गेस अ, पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स में मेरा काफी ज्यादा काम रोज का ही स्पार्क के ऊपर रहा है। तो स्पार्क इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन स्पार्क काफी लेटर स्टेज में आता है आपके पास। शुरू मलिहा, में सॉरी, आपकी ना इन जो आप ये सारा बता रहे, तो मेरा एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन आ रहा है, एंड आई एम सो सॉरी, आई हैव या टू श्योर स्टॉप श्योर। यू। कि आपने कहा कि आप किसी बेंटली की तरह की कंपनी में जाएं, मगर एज अ वुमेन, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि बहुत आप, आई एम श्योर यू वुड एग्री दैट देयर आर वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन इटसेल्फ, एंड देन एज अ वुमेन यू डोंट रियली गो फॉर बिगर फील्ड्स इन टेक। अब तो आई थिंक काफी इस तरह ऑब्वियसली हम कर रहे हैं, evolve कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं एज अ कंट्री भी, तो हो रहा है। मगर वेरी अनफॉर्चुनेटली जब हम सर्च भी कर रहे थे, तो वी कुडंट सी अ लॉट ऑफ नेम्स इन वुमेन डेटा इंजीनियर, और वुमेन डेटा इंजीनियर फ्रॉम पाकिस्तान स्पेसिफिकली। तो आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को गाइड करें, व्हाट वाज द प्रोसेस लाइक दैट यू फॉलोड? आपने क्या अप्लाई किया था, मैथ्स अप्लाई किया था, आप अपनी क्या स्किल्स के बारे में लिंक्डइन पे बात करती थी, या अपनी रेज्यूमे में क्या इस तरह का किया? सो व्हाट एग्जैक्टली डिड यू डू टू बी वेयर यू आर, और आपने ये जॉब किस तरह सिक्योर की? तो इस बारे में थोड़ी सी बात करें। अच्छा, इस बारे में मैं बताती हूँ। सो बेसिकली अगर आप एज ए एंट्री लेवल जा रहे हैं, तो आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लाइक एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम्स, एंड देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन। एंड लाइक अगर तो लेट्स से अगर आप एक डिफरेंट फील्ड से डेटा इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, तो दे जस्ट एक्सपेक्ट कि आपको डेटाबेस सिस्टम्स, कोर सीएस जिसमें मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ऊप आ जाता है। तो लाइक जो कोर सीएस के हैं ये भी काफी जगहों पर नहीं भी यूज होते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डेटाबेस सिस्टम्स, एसक्यूएल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन। दिस इज ऑल जो कि आपको रिक्वायर होता है टू एक्चुअली लाइक पास, आई मीन एंट्री लेवल पे पास द इंटरव्यू एंड देन गेट अ जॉब। एंड आई थिंक मैंने भी इसी तरह जॉब ली थी। मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आई हैड एक्सपीरियंस विद ऑन प्रेमिसेस डेटा इंजीनियरिंग हाउ इट वर्क्स, लेकिन मेरा एजूर के साथ एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये सारा कुछ मतलब दे जस्ट एक्सपेक्ट कि आपको कोर चीजें पता हो, लेकिन आगे जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता लर्न करते हैं। मैंने भी मतलब साथ साथ ही लर्न करते हैं, क्योंकि जाहिर है डेटा इंजीनियरिंग में काफी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, आप सब नहीं सीख सकते, एंड नो बडी एक्सपेक्ट कि आप सब कुछ सीखें। सो आप मतलब जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं, वैसे वैसे आप उनसे रिलेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज सीख रहे होते हैं। सो आई मीन पाइथन एंड एसक्यूएल, दिस इज ऑल जो लेकिन कि आप। okay, I think that's great that you spoke about the skills that are required for an entry level job. But in terms of getting a job like somewhere जिस तरह Bentley के लिए काम करती हैं, तो आप थोड़ी सी इस point of view से भी guide करें that now you have learned the skills, you've also followed a certain path, आप graduate भी हो गए, आपने skills भी सीख ली, आपने online बहुत सारे platforms available हैं जिधर से आप ये चीजें सीख भी सकते हैं, आपने उनके बारे में भी हम्म। बताया, and then you said that companies also have their budget in themselves as well
जो आपको ऑफर करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के साथ बेंटली की पार्टनरशिप है, तो आप बहुत सारी चीजें उधर से भी सीखती हैं। बिल्डिंग ऑन टू दैट, आप थोड़ा ये भी बताएं ना कि पोर्टफोलियो के अंदर आपको किस तरह के प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करने चाहिए। आप अगर स्किल्स अपनी हाईलाइट करें तो क्या स्किल्स हैं जो हाईलाइट करनी चाहिए। और आप अगर बहुत ज्यादा स्किल्स लिख रहे हैं, लेकिन आपको जब इंटरव्यू में उस बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको इंटरव्यू में यू डोंट एग्जैक्टली नो हाउ टू टॉक अबाउट इट। इंटरव्यू में किन चीजों के बारे में बात करें, लाइक समबडी आस्क यू, तो आप कितना स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप उसके ऊपर भी थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को गाइड करें। Maliha, do you can you hear us? I think she's not here. I think her internet connection dropped. I'm so sorry, guys. Just let me check with her. I think it's probably her internet connection. I'll get back. I think Maliha is back. You're muted, Maliha. Sorry, I'm really sorry. नो नो, कम्प्लीटली ऑल राइट। आई वी अंडरस्टैंड, थोड़ा पाकिस्तान में मसले अभी इंटरनेट के, हम इतने वो नहीं कर पाए। तो मलिया, कमिंग बैक टू अवर कॉन्वर्सेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि थोड़ी स्किल, ये बहुत कंफ्यूजन होती है एंड पीपल रियली डोंट अंडरस्टैंड कि हमने स्किल्स अगर सीखी हैं तो उनके बारे में किस तरह बात करें, और अपनी रेज्यूमे पे अपने पोर्टफोलियो में किस तरह हाईलाइट करें। तो आप थोड़ी सी अगर टिप्स उनके साथ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकें। ओके, सो बेसिकली इस हवाले से एक तो अगर तो आप लाइक अगर तो बेसिकली बिल्कुल आप एंट्री लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ सेल्फ प्रोजेक्ट्स करें एंड समथिंग, एक पोर्टफोलियो अपना बिल्डअप करें टू एक्चुअली लाइक शोकेस के आपको जो स्किल्स आप मेंशन कर रहे हैं वो आपको मतलब आपको नो हाउ भी है उसके हवाले से, क्योंकि कंपनीज दे रिक्वायर सॉर्ट ऑफ अ proof of your skills. So projects, self projects are a great way to actually start from this. And let's say before joining any company, आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक on premises system को लेके अपने जितने भी आपकी स्किल्स हैं उनको शोकेस कर सकें थ्रू लाइक मे बी अ स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट और अ बैच पाइपलाइन। तो ये मतलब स्टार्टिंग के लिए आई थिंक आप प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो के ऊपर ज़्यादा फोकस करें इफ़ यू डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, ताकि कंपनीज को एंड कंपनीज को एक सॉर्ट ऑफ प्रूफ मिले। एंड ये सिर्फ डेटा इंजीनियरिंग के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये एक्चुअली मतलब आप किसी भी फील्ड में अगर एंट्री लेवल पर जा रहे हैं तो ये चीज रिक्वायर्ड है, क्योंकि जाहिर है यू डोंट हैव योर वर्क एक्सपीरियंस टू बी अ प्रूफ फॉर योर स्किल्स। तो आपको प्रोजेक्ट्स और लाइक सेल्फ प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं, एक पोर्टफोलियो चाहिए होता है, ताकि आप अपने जितने भी रिक्रूटर्स हैं उनको शोकेस कर सकें। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अप्लाई करते वक्त होता है कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि आई मीन आई जस्ट वांट टू टारगेट दिस स्पेसिफिक कंपनी, लेकिन आपको मतलब मेरे साथ भी ये चीज होती है कि आपको अप्लाई करना पड़ता है टू लाइक एटलीस्ट लाइक 50 100 कंपनीज, एंड देन लाइक 15 to 20 आपके इंटरव्यूज स्केड्यूल होते हैं, और फिर उसके बाद नैरो डाउन करके आपके पास लाइक मे बी 3 to 4 या मे बी लाइक 1 or 2 आपके पास
फाइनल ऑफर्स आती हैं। सो अप्लाई बहुत जगहों पे करना पड़ता है, आप किसी एक कंपनी को टारगेट नहीं कर सकते। एंड बाकी एक और चीज़ मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगी इसके हवाले से, जो कि शायद मैंने पहले कवर नहीं की, कि जो बात ये मतलब आई एम नॉट श्योर कि अगर किसी के ज़हन में ये सवाल है, बट जो बड़ी कंपनीज़ हैं, सिर्फ़ उनमें ही जो है वो बजट नहीं होता for for certifications, या for joining courses or cloud courses specifically. कोई भी company, even like small or mid size or even large companies, अगर वो अगर उनका सारा काम जो है वो क्लाउड के ऊपर है, या इवन अगर ऑन प्रेमिसेस पर भी है, तो दे हैव अ बजट एंड दे आल्सो वांट, क्योंकि अब तो काफी कंपनीज हैं जो कि क्लाउड की तरफ माइग्रेट कर रही हैं, जो ऑलरेडी नहीं थी क्लाउड पर। तो दे हैव बजट एंड दे वांट कि देयर डेटा इंजीनियर्स, या देयर इवन कुछ कंपनीज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी अपस्किल करती हैं टुवर्ड्स एक्वायरिंग क्लाउड सर्टिफिकेशन। सो अगर तो कोई कंपनी दे वांट टू पुट यू इन अ प्रोजेक्ट जो कि क्लाउड से रिलेटेड है, तो दे वुड आस्क यू टू हैव सर्टिफिकेशंस, या वो आपको प्रोवाइड करेंगे रिसोर्सेज और आपके लिए बजट एलोकेट करेंगे, जो कि मतलब ये चीज़ मैंने मिड साइज कंपनीज में भी देखी है, स्टार्टअप्स में भी देखी है, एंड एंटरप्राइज कंपनीज में भी ये चीज देखी है कि if they have certain projects with cloud, yeah, they're already working in cloud, so they have the budget and they provide you with resources, या with a certain budget कि आप अपनी certifications ले सकें, या क्लाउड के ऊपर आप अपने projects बना सकें for your portfolio as well। तो ये चीज़ भी कंपनीज करती हैं प्रोवाइड। Thank you so much, Maliha. I think that also gives us a very clear picture of, what are the things we should really target और क्या-क्या चीजें हैं जो हमें while we're learning this or we're applying for work हम कर सकते हैं। आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह सम अप कर दिया, बहुत सारी चीजें आपने कवर कर दी हैं कि डेटा इंजीनियरिंग क्या होता है, उसके अंदर क्या स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं, आपने किस तरह अपनी जॉब स्टार्ट की, आपकी डे टू डे टास्क के बारे में भी आपने बात की। हम थोड़ी सी आपकी जो लाइफ एज ए डेटा इंजीनियर फॉर बेंटली के बारे में भी बात करेंगे। बट बिफोर दैट, जब भी हम क्योंकि नया बजवर्ड डेटा साइंस था, तो we noticed that there was a lot of this boom in because of boom in data science, there were a lot of people who shifted towards data science and they started learning data science. But when we also spoke, हम बहुत सारी कंपनी से भी बात करते हैं और रिक्रूटर से भी, so they said that they equally need data engineers as well. तो मुझे आप हमारी थोड़ी ये कंफ्यूजन दूर करिए कि डेटा साइंस की तरफ तो इतने ज्यादा लोग जा रहे हैं, specifically in Pakistan, but why are people not shifting towards data engineering? And what is the difference between a data scientist and a data engineer? अच्छा, असल में आई थिंक डेटा साइंस का बजवर्ड, अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने सीएस शुरू किया था इन 2016, तो डेटा साइंस या मशीन लर्निंग का बजवर्ड आई गेस तब से ही था, जहाँ जहाँ तक मेरी नॉलेज है। लेकिन डेटा इंजीनियरिंग, क्योंकि अभी रिसेंटली डेटा इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जैसे मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया, तो people actually don't have an idea कि डेटा इंजीनियरिंग भी एक फील्ड है। और इवन मैं जब स्टार्ट आउट कर रही थी एंड इन द वेरी एंड ऑफ 2020, तो मुझे भी मुझे भी ये चीज फील होती थी कि मतलब आई वांट टू नो अबाउट दिस, आई डोंट नो द पाथवे, और मुझे पाथवे कहीं से मिल भी नहीं रहा होता था। सो आई थिंक इसमें मेरे लिए जिस चीज ने काफी ज्यादा हेल्प की है, दैट वाज joining different data engineering communities, and then different sort of famous people in FANG companies, जो कि already they were data engineers and they were working on cool stuff as well. So उनसे कनेक्ट करके उनका पाथवे समझ कर जो है वो मुझे आगे फर्दर नॉलेज मिली कि ओके दिस इज द पाथवे। क्यों, और उस टाइम पे मतलब there weren't even boot camps as well regarding data engineering, तो ये भी चीज मेरे टाइम पे काफी लैकिंग थी। आई थिंक
अच्छा, टुवर्ड्स डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग। सो आई थिंक इसमें एक मेजर चीज़ मैं हाईलाइट करूँगी कि आपका जो डेटा साइंस नीड्स का एक पूरा साइकिल है, जिसमें सबसे पहले आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं जो कि वेबसाइट्स बिल्ड करते हैं, एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं जिनसे कस्टमर्स इंटरैक्ट करके डेटा जनरेट कर रहे हैं। देन आपके पास, इफ यू आर इन अ स्मॉल कंपनी, तो आपके पास द नेक्स्ट फेज इज मे बी डेटा एनालिस्ट, जो कि उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं और डिफरेंट बिजनेस डिसीजंस ले रहे हैं, मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। एंड लाइक फिर उसके बाद इफ यू आर एक्चुअली इन मिड साइज कंपनी, तो फिर डेटा इंजीनियर्स की डिमांड आती है, क्योंकि उनके पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है। सो लाइक अगर तो आपके पास डेटा कम है, जैसे मे बी 500 to 1000 or 10,000 or 20,000 records in an Excel sheet, या मे बी in a database, तो तब तक तो बात सिर्फ ये है कि वो एक ही पर्सन होता है जो कि लाइक डेटा इंजीनियरिंग का काम भी कर रहा है, मतलब डेटा को क्लीन भी कर रहा है, शेप भी कर रहा है, ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है। और वो ही सेम पर्सन जो है वो आगे मशीन लर्निंग मॉडल्स उनको ट्रेन भी कर रहा है और उनके ऊपर प्रेडिक्शंस और फिर आगे फर्दर डिसीजंस। तो वो एक ही पर्सन होता है जो कि सारे हैट्स उसको पहनने पड़ते हैं। लेकिन ये रोल्स सेपरेट आउट होते हैं जब आप एक लाइक मिड साइज या बड़ी कंपनी में होते हैं, तो वहां जाके ये रोल सेपरेट आउट हो जाते हैं। और ये क्यों सेपरेट आउट होते हैं? क्योंकि जब आपके पास डेली टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है, तो उस केस में सिर्फ एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखना टू एक्चुअली लाइक एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, वो चीज फिर वर्क नहीं करती। यू हैव टू लाइक क्रिएट अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर, जो कि डेटा को एक साइड से एक्वायर करके दूसरी साइड पर स्टोर कर रहा है एंड बीच में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है, जिसकी वजह से द रोल्स आर सेपरेट आउट एज वेल। इसमें अगर डिफरेंस की बात की जाए, तो डिफरेंस ये है कि डेटा इंजीनियर्स जो हैं वो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेटा इतने रॉ फॉर्म में है कि हमें मतलब जो बिजनेस डिसीजन मेकर्स हैं उनको वो इस डेटा को यूज नहीं कर सकते एक्चुअली। सो दरमियान में हमारे डेटा इंजीनियर्स आते हैं जो कि ये पूरा सिस्टम बनाते हैं। और स्पेशली इन अ बिग कंपनी, जब आप लाइक अगर आपके कस्टमर्स जो हैं वो वेबसाइट से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो डेली के बेसिस पे आपका डेटा जनरेट हो रहा है और दूसरी साइड पे आपका एक मॉडल है जो कि ट्रेन हो रहा है। दरमियान में आपकी एक डेटा पाइपलाइन होती है जो कि डेली के बेसिस पे वो डेटा कलेक्ट कर रही है और उस डेटा को क्लीन कर रही है, उस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रही है, देन उस डेटा को प्रोवाइड करती है टू डेटा साइंटिस्ट, जो कि आगे फर्दर जो है वो डेटा को लेके उसको ट्रेन कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, एंड देन वो जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो बेसिकली इम्प्रूव हो रहा है फर्दर। सो क्योंकि डेटा डेली जनरेट हो रहा है, तो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर चाहिए होता है, जो कि एक्चुअली जिसके पास इतनी पावर हो, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो उसका, कि आप उस डेटा को प्रोसेस कर सकें। सो इस वजह से हमारे पास मतलब ये दो फील्ड्स हैं वो सेपरेट आउट हो गई हैं। थैंक यू सो मच मलिहा। आई थिंक ये आपने एक हमारी सबकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर कर दिया है, कि और ये भी बता दिया कि जो फंडामेंटल लाइक इम्पोर्टेंट वर्क स्टार्ट डेटा इंजीनियरिंग से होता है, क्योंकि इतना सारा डेटा होता है और डेटा इज इन्वॉल्व एवरीवेयर, सो ऑब्वियसली एवरीवन नीड्स डेटा। और उसका जो इम्पोर्टेंट वेयर हाउसिंग का और डेटा कलेक्शन का काम, और फिर उसके आगे जो कॉम्प्लेक्स इतनी आपने चीजें बताई हैं, वो सब तो डेटा इंजीनियर ही करते हैं। थैंक यू सो मच मलिहा। आई थिंक ये आपने काफी बहुत सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं। और जिस तरह आपने बताया कि जब आप डेटा इंजीनियरिंग में जा रही थी, तो तब बहुत ज्यादा आपको आपने इस तरह स्ट्रगल किया कि आपको यू हैड टू फाइंड पीपल और कम्युनिटीज टू लर्न फ्रॉम देम। बट ऑल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड इट इज एवर इवॉल्विंग लाइक एट सच अ रैपिड पेस, कि अब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह आपको हमने रीच आउट किया, एंड नाउ वी हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑडियंस टू आस्क यू एज अ मेंटोर, क्योंकि यू हैव मेड इट एंड यू आर ऑलरेडी देयर नाउ। तो आपकी भी ऑब्वियसली 4-5 साल की स्ट्रगल है, यू कैन ऐड दैट टू द पीपल्स लाइफ जो अभी सुन रहे हैं। और आपने जितनी भी बातें बताई हैं, आई एम श्योर
हमें अनलेस आप किसी को रीच आउट करें, आप इस तरह की कम्युनिटीज को ज्वाइन करें, तो आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अभी देयर इज अ लॉट टू डू। जिस तरह हमने कंपनीज की बात की, तो पाकिस्तान में कोई इतना डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग सिखा भी नहीं रहा। We Atom Camp, we're also very new and we've started like 2 3 years ago, and we have started to launch more, courses, and in also budget friendly prices. So we try कि हम scholarships भी लोगों को दें, और जितना हम help कर सके to help them encourage कि वो डेटा साइंस सीखे, डेटा इंजीनियरिंग सीखे। अभी भी वी हैव लॉन्च्ड डेटा इंजीनियरिंग बूट कैंप, क्योंकि लोगों को ये मिसकंसेप्शन थी कि डेटा इंजीनियरिंग डिमांड में नहीं है, और पीपल डोंट एक्चुअली नीड इट, और सब डेटा साइंस ही सीखे जा रहे थे। तो वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ शिफ्ट देम टू दिस कि यार नहीं, यू प्लीज रियली लर्न डेटा इंजीनियरिंग एज वेल, एंड यू कैन परहैप्स अर्न बेटर मनीज। तो आप हमारी थोड़ी सी हेल्प करें, और आप लोगों को ये भी एग्जांपल दें कि डू यू रियली थिंक कि नेशनली और इंटरनेशनली डेटा इंजीनियर्स आर इन डिमांड, उनकी ज़रूरत है, और अगर हम सीख के डेटा इंजीनियर बन जाएंगे तो हमें आप कोई एवरेज सैलरी फिगर भी अगर आपको लगता है, आपके दिमाग में है कि अगर आप बन जाएं और आप किसी बड़ी कंपनी के लिए काम करें, तो दिस इज द एवरेज सैलरी फिगर दैट यू कैन परहैप्स अर्न एज वेल। उसके बारे में भी बात करें, एंड देन टू आपने कम्युनिटीज की बात की जो आपने ज्वाइन की थी, तो आफ्टर दैट प्लीज लिटिल अबाउट दैट, उनके अगर कोई नेम्स हैं या कुछ इस तरह के हैं जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकती हैं, तो दैट वुड बी ग्रेट। Okay, so basically, to like summarize, सबसे पहले मतलब communities जो मैंने join की थी, I think there are a few communities on LinkedIn specifically, like not specific to data engineering, but बाकी like data science, AI, सबकी communities LinkedIn पर हैं, and LinkedIn is a really great way to actually join those communities. और काफी मतलब इंडिविजुअल रीच आउट करना, आई अंडरस्टैंड, जरा थोड़ा मुश्किल होता है कि आप खुद भी जरा हेजिटेट करते हैं कि मतलब शुड आई आस्क दिस क्वेश्चन टू अ पर्सन और नॉट, और वो मतलब किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। एंड देन ऑल्सो उनका टाइम जो होता है वो काफी लिमिटेड होता है, तो आपको वो भी you have to keep that in mind. So I think to name a few communities जो कि मैंने ज्वाइन की थी, I think एक so recently it's been really helpful. It's actually by a Netflix data engineer. It's Data Engineer Things. सो उनकी एक कम्युनिटी है जिसमें सारे डेटा इंजीनियर्स हैं, एंड डे टू डे बेसिस पे मैं देखती हूँ कि वो मतलब इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन योर डेली वर्क, तो वो आपको गाइड भी कर रहे होते हैं। एंड देन इफ समवन इज जस्ट स्टार्टिंग आउट इन डेटा इंजीनियरिंग, तो वो एक्चुअली मतलब काफ़ी हेल्प भी करते हैं आपको टू डिफाइन अ पाथवे, और उसमें आई थिंक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है ये कम्युनिटी। और आई थिंक इसके अलावा देर आर फ्यू गुड नेम्स इन डेटा इंजीनियरिंग फील्ड जिनको मतलब मैंने रीच आउट भी किया था। एंड so I think एक तो there is a name Andreas Kretz, and he also has a specific dedicated वेबसाइट टू लर्न डेटा इंजीनियरिंग एज वेल, जिसमें वो प्रोजेक्ट्स भी मतलब आपको करवाते हैं। सो आई थिंक दैट्स learnDataEngineering.com। सो ये भी मतलब काफ़ी लोग इफ एनीवन वांट्स तो ये कर सकते हैं। एंड देन देयर इज अ पर्सन जैक विल्सन एज वेल। सो ही इज़ अ ग्रेट नेम फॉर डेटा इंजीनियरिंग का मतलब उनके डेली के बेसिस पे लिंक्डइन आर्टिकल्स होते हैं, लिंक्डइन पोस्ट होते हैं, जिसमें ही हाईलाइट स्पेसिफिक डेटा इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स एंड उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। एंड देन आई थिंक another name that I want to highlight is he is also a data engineer from India. His name is Darshil, and he has a specific YouTube channel, Data with Darshil. And अगर आपको जैसे अगर अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, या आपको नहीं समझ आ रहा, मुझे भी नहीं एट सम पॉइंट मुझे भी नहीं समझ आता था शुरू में कि अच्छा डेटा इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, तो स्टार्ट कहाँ से लिया जाए, और अगर कोई एग्जांपल्स हैं तो एग्जांपल्स कहाँ हैं। So I think his YouTube channel also helped me a lot with like building my portfolio in terms of self projects in terms in data engineering. So ये एक specific नाम है जो कि मैं highlight करना चाहूँगी क्योंकि मुझे काफ़ी personally help मिली थी। And I think apart from that,
सैलरी रेंज एक्चुअली डिपेंड करती है कि आप किस कंपनी में हैं. इफ देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक, जो कि मतलब ये तो एक कॉमन एग्जांपल है कि इफ अ कंपनी इज लाइक इफ दे हैव डेटा एनालिटिक्स इंजन दैट दे आर वर्किंग ऑन, तो वहाँ पे डेटा इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए. तो डेटा इंजीनियर्स की उन कंपनीज में डेटा इंजीनियर्स की सैलरीज जो है वो मशीन लर्निंग इंजीनियर से भी ज़्यादा होती है. सो ये एक चीज़ है कि इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर डेटा इंजीनियरिंग एंड आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी ज़्यादा हो, तो आई थिंक फोकस टुवर्ड्स वो कंपनीज जो कि डेटा स्पेसिफिक हैं या जिन जो एक्चुअली बिग डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, तो वहाँ पे देयर इज़ अ चांस कि आपकी सैलरी जो है वो मशीन लर्निंग इंजीनियर से भी ज़्यादा हो. सो ये आई थिंक एक चीज़ है जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूँगी. लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिंग अ सैलरी रेंज, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन कि आप एक तो किस कंट्री में हैं, और किस कंपनी में हैं. इफ इट्स लाइक अ मिड साइज कंपनी, एंड कंपनी को डेटा इंजीनियर्स की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है या डेटा इंजीनियर्स की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है उस कंपनी में, ये भी एक फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है इन डिफाइनिंग योर सैलरी. अगर मैं बहुत लाइक रियलिस्ट होकर बात करूँ, तो ये चीज़ है कि अगर कंपनी बहुत ज़्यादा काम करिए टुवर्ड्स बिग डेटा प्रोसेसिंग या टुवर्ड्स बिग डेटा एनालिटिक्स इंजन, तो तब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी कंपनी में एंड आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी. सो ये एंड ये सिर्फ डेटा इंजीनियरिंग के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये एक्चुअली हर फील्ड पे अप्लाई होता है कि अगर तो उस फील्ड की डिमांड, उस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इन अ कंपनी, तो वो कंपनी आपको पे भी ज़्यादा करेगी टू लाइक टू गेट द वर्क डन, क्योंकि आपकी इम्पोर्टेंस फिर ज़्यादा हो जाती है कंपनी के अंदर. सो मच मलिहा। आई थिंक ये बातें हमें यूट्यूब तो और गूगल तो कभी नहीं बताएगा अनलेस हम आप जैसे लोगों से हु आर इंस्पायरिंग एंड आल्सो वर्किंग रियली रियली हार्ड। ऑनेस्टली सिर्फ कहना आसान होता है कि यू आर इंस्पायरिंग पीपल, बट वी नो दैट द सॉर्ट ऑफ वर्क दैट goes behind your day to day job और आप जो चीजें करती हैं। हमने सब कुछ आई थिंक सम अप कर दिया है। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने बगैर पूछे ही आंसर कर दिए। कम्युनिटीज की भी आपने बात कर दी, इंटरनेशनली डिमांड क्या है, क्या रोड मैप है जो फॉलो करना चाहिए, क्या स्किल्स हैं जो सीखनी चाहिए, रेज्यूमे के ऊपर पोर्टफोलियो के ऊपर भी काम करना चाहिए इफ यू डू नॉट हैव अ ऑलरेडी हैव अ जॉब एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली फ्रेश ग्रेड्स के पास नहीं होता। तो दीज आर द थिंग्स दैट दे कैन लर्न डू, और फिर वो एक सर्टेन जिधर अब माशाल्लाह आप हैं, शायद बहुत सारे और वुमेन भी in the days to come, in the years to come, inshallah होंगी. And I think you stand as a great example. Also, I see a lot of comments, questions coming in the chat, but आई डोंट थिंक कि एक घंटे में हम हर कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, बट आई ऑल्सो थिंक कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आंसर भी कर दिए हैं। तो वी ओनली रिक्वेस्टेड मलिहा एंड आर, तो हम उनसे वो क्वेश्चंस बार बार रिपीट नहीं कर सकते, बट दिस वेबिनार इज गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब एज वेल, सो इट विल बी अप ऑन आवर यूट्यूब। एंड अगर आपने कुछ मिस आउट कर दिया है तो आप प्लीज यूट्यूब पे जाएं और आप वहाँ पे उस वेबिनार को चेकआउट कर लें, और क्वेश्चन अगर कोई मिस हो गया तो वहां से आप रिव्यू भी कर सकते हैं। ऑल्सो वी रियली इंकरेज कि आप अपनी वुमेन फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, उनको भी इंस्पायर करें, और उनको भी ये बताएं दैट दे कैन ऑल्सो लर्न दिस एंड दे कैन ऑल्सो एक्सेल एज अ वुमेन इन दिस फील्ड। दे कैन वर्क फ्रॉम देयर होम इफ दे वांट, दे कैन इंटरनेशनली नेशनली जाके भी वो कर सकते हैं। तो अब आई थिंक इसके साथ इंटरलिंक करते हुए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मिलिया यही है कि आप ये बताएं कि आपकी डे टू डे टास्क थोड़े से इन डिटेल के, एज अ डेटा इंजीनियर अपनी कंपनी में आपका क्या रोल है, और आपको क्या डे टू डे परफॉर्म करना पड़ता है एज योर टास्क। अच्छा, सो बेसिकली मेरी कंपनी में अगर मैं हाईलाइट करूं तो स्पेसिफिक टू डेटा इंजीनियरिंग, बेंटली के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा जो कि इमेजेस या डॉक्यूमेंट्स हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं, इमेजेस हैं हमारे पास. मतलब स्ट्रक्चर डेटा भी है लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा काफ़ी ज़्यादा है. एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई स्ट्रगल के डेटा इंजीनियरिंग में हमें ये तो समझ आता है कि अच्छा लाइक टैबुलर डेटा के साथ कैसे काम करना है या सेमी स्ट्रक्चर डेटा के साथ कैसे काम करना है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ कैसे काम करना है, ये इस पे अभी भी काम हो रहा है इन द फील्ड ऑफ डेटा इंजीनियरिंग. लेकिन अभी इतना ज़्यादा लाइक इतना ज़्यादा आई वुड से कि
मेच्योर काम नहीं है, और पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स लाइक काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, आई एम श्योर, अबाउट डेटा लेक्स या लेक हाउस आर्किटेक्चर। ये ज़रा थोड़ी सी एडवांस टर्म्स हैं, बट आई वांट पीपल के वो इसके बारे में सर्च भी करें और इसको देखें भी, बिकॉज लाइक अमेजिंग वर्क इज गोइंग ऑन इन द फील्ड ऑफ डेटा इंजीनियरिंग, and people are shifting towards like finding out how to handle unstructured data like images and videos, and even बल्कि आजकल तो काम मतलब अगर आप देखें तो ग्राफिक कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लाइक विद रिस्पेक्ट टू टेक्सचुअल। शुरू में था, लेकिन अब हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं टुवर्ड्स लाइक रील्स और स्टोरीज और इमेजेस, स्पेसिफिकली ऑन इंस्टाग्राम। सो ग्राफिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, एंड हम डेटा इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स data lakes and lake house architectures as well. So if any of you want to search about it, तो please do search about it, काफ़ी amazing work है। and I think डे टू डे टास्क में uh, मेरा काम क्योंकि लाइक बिग डेटा के साथ ज़्यादा है, तो सॉरी मेरा काम क्योंकि बिग डेटा के साथ ज़्यादा है, तो मेरा मतलब स्पार्क जॉब्स लिखना, स्पार्क जॉब्स को डीबग करना, एंड लाइक डेटा पाइपलाइंस बनाना स्पेसिफिकली, क्योंकि लाइक बेंटले के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर बेसिकली दे यूज माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड, एजर क्लाउड फॉर देयर लाइक ऑल ऑफ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो मेरा एजर के साथ बहुत ज़्यादा काम होता है ऑन डे टू डे बेसिस, लाइक एजर पाइपलाइन, एजर डेटा पाइपलाइंस और स्पार्क जॉब्स। फिर स्नोफ्लेक के ऊपर काम होता है। स्नोफ्लेक इज एक्चुअली डेटा वेयरहाउस, एंड इट्स वेरी पॉपुलर डेटा वेयरहाउस, और काफ़ी मतलब इफ़ एनीवन वांट्स तो उनकी आई थिंक उनकी सर्टिफिकेशंस भी हैं, जो कि लाइक लेट्स अगर आप ट्रायल अकाउंट वहाँ पे बनाकर आप इफ़ यू वांट टू लर्न कि स्नोफ्लेक है क्या, और किस तरीके से हम स्नोफ्लेक के ऊपर काम कर सकते हैं, और किस तरीके से स्नोफ्लेक जो है वो क्यों इतना ज़्यादा डिमांड में आजकल आ रहा है इन टर्म्स ऑफ डेटा वेयर हाउसेस, तो but do check out their website, and उनके like ट्रायल अकाउंट पर आपको सर्टिफिकेशंस भी मिल जाती हैं, आप कोर्सेज भी देख सकते हैं कि उनके क्या हैं, एंड दे आल्सो डू लाइक हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्नोफ्लेक के ऊपर काम कैसे करना है, और किस तरीके से वो एक लाइक इन कंपैरिजन टू बाकी डेटा वेयर हाउसेस है, लाइक एजर में सिनैप्स है या AWS में रेडशिफ्ट है, तो वो किस तरीके से इनके कंपैरिजन में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। सो एक तो ये काम होता है, एंड देन आई हैव आल्सो वर्कड विद पावर BI एज वेल फॉर लाइक विजुअलाइजेशंस। ऑल्दो ये मतलब डेटा इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट से काम नहीं होता, लेकिन इन इवन इन बिग कंपनीज आपको समटाइम्स लाइक मल्टीपल हैट्स पहनने पड़ जाते हैं। सो आई गेस एक तो ये है, एंड ऑल्सो आई हैव वर्क विद लाइक writing SQL scripts to process data. So I think SQL को in detail में देखना, and आई थिंक एक चीज है जो कि मैं फर्दर हाईलाइट करना चाहूंगी कि जो मैंने देखा है कि अब आजकल सिंस लाइक जैसे आप लोग भी बूट कैम्प करवा रहे हैं, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डेटा इंजीनियर्स, जो कि अगर मैं अपकमिंग देखूं तो काफ़ी ज़्यादा डेटा इंजीनियर्स आएंगे होपफुली, लेकिन अ वे टू स्टैंड आउट अमंग देम, ताकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ताकि कंपनीज आपको हायर करें, क्योंकि सारे वही सारे लोग जो है वो अप्लाई भी करेंगे आपके साथ, और यू हैव टू स्टैंड आउट ताकि कंपनी आपको हायर करे। तो आई थिंक इसमें एक चीज है कि आप लाइक वंस यू स्टार्ट विद एन एंट्री लेवल जॉब, तो उसके बाद ट्राई टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि एसक्यूएल किस तरीके से वर्क करता है। एडवांस एसक्यूएल के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इवन एज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हमें हमारे कोर्सेज में नहीं करवाई जाती ओवर द 4 years पीरियड।
तो वो चीज़ें हमें खुद से ही देखनी पड़ती हैं। तो डू चेक कि किस तरीके से वर्क करता है, क्यों इतना ज़्यादा डेटा इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ होता है। एंड स्पेसिफिकली ऑल्सो अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बिग डेटा प्रोसेसिंग एंड स्पार्क आपको एक्साइट करता है, तो आई वुड वांट कि थोड़ा लाइक अंडरनीथ के किस तरीके से स्पार्क एग्जीक्यूशन इंजन वर्क करता है, किस तरीके से वो जो है वो इतना ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, क्यों लोग जो है वो इतना ज़्यादा स्पार्क यूज़ कर रहे हैं, और किस तरीके से पहले मतलब हम हडूप में मैप रिड्यूस जॉब्स लिखते थे, तो अब स्पार्क की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो क्या वजह है कि स्पार्क की तरफ शिफ्ट हुए हैं? तो आई थिंक अगर आप इफ यू वांट टू स्टैंड आउट अमंग द रेस्ट ऑफ द डेटा इंजीनियर्स, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मतलब when you're debugging a certain Spark job या a certain SQL script, तो ये आपको hours of debugging आपके सेव कर देती है। अगर आपको इन डिटेल थोड़ी सी नॉलेज हो कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं, क्यों ये चीज़ यूज़ हो रही है, और किस तरीके से स्पार्क वर्क करता है, किस तरीके से एसक्यूएल वर्क करता है। तो आई थिंक ये काफ़ी मेरी तरफ से ये एक टिप होगी सब लोगों के लिए कि प्लीज़ अंडर अगर आप like once you secure an entry level job, please do try to understand कि किस तरीके से in depth चीज़ें वर्क कर रही हैं। क्योंकि हम लोग खुद भी देखते हैं कि there are data engineers but there are not a lot of good data engineers जिनको हायर किया जा सके। थैंक यू सो मच मलीहा। आई थिंक आपने ऑनेस्टली बहुत एक क्लियर पिक्चर और एक बहुत ऑनेस्ट पिक्चर भी दी है कि चीजें सीखनी हैं, स्किल्स बहुत सारी हैं जो आप सीख सकते हैं अगर आप, लेकिन आपको स्टार्ट कहीं से करना होएगा। ऑनेस्टली जिस आपने यूनिवर्सिटीज की भी बात की कि एज अ इवन सी एस ग्रेजुएट आपको लगता है कि कुछ चीजें आपकी डिग्री में नहीं कवर की गई हुई थी, तो वो आप परहैप्स सेल्फ लर्निंग से सीख सकते हैं, बिकॉज दैट्स द वे फॉरवर्ड। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम इज प्रोग्रेसिंग, वर स्टिल इन द ग्रोइंग, अभी हम उस स्टेज में हैं, अभी हमें बहुत ज्यादा ग्रो करना है। तो इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग अ गुड डेटा इंजीनियर या अपनी इस फील्ड में एक्सेल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। स्किल्स हैं लेकिन सीखनी है आपको, लर्न करना है फ्रॉम समवेयर। आपको अगर यूनिवर्सिटी ने अनफॉर्चुनेटली नहीं सिखाया तो अलग और एवेन्यूज की तरफ जाएं। आप देखिए कि कोर्सेरा है, यूट्यूब है, गूगल है, आप एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप। तो आप इस तरह, आपने कम्युनिटीज के बारे में बताया, उनको ज्वाइन करें, उनसे सीखें, आप इस तरह की कोर्सेज ज्वाइन करें। बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। कुछ लोगों को कम्युनिटी और ऑनलाइन लर्निंग ज्यादा हेल्पफुल लगती है, उनको लगता है कि अगर वो किसी इंस्ट्रक्टर से सीखेंगे तो पर शायद वो बेहतर सीख सके। आप उसके लिए बूट कैंप्स ज्वाइन कर सकते हैं, एटम कैंप का बूट कैंप भी आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली सिर्फ इसी वजह से उसको डिजाइन किया है, बिकॉज वी थॉट, हमें भी लगता है कि मार्केट के अंदर इसकी बहुत डिमांड है। मगर अगैन वो ही है कि अच्छे डेटा इंजीनियर्स नहीं है जो हायर हो सके। तो अच्छा डेटा इंजीनियर बनने के लिए ऑब्वियसली पहले सीखना पड़ेगा। पहले अपने वो डेटा से, हमारे एक इंस्ट्रक्टर हैं जिनकी एक बहुत कॉमन टर्म है कि आपको डेटा में हाथ बहुत गंदे करने पड़ेंगे, देन यू विल बिकम अ गुड डेटा इंजीनियर और अ गुड डेटा साइंटिस्ट रिगार्डलेस। तो आई थिंक आपने भी यही उसके ऊपर ही अपनी एम्फोसाइज किया है कि सीखें, लर्निंग करते रहें। अब हमने आपसे 1 घंटे की बात की थी तो हम आपसे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट जस्ट ऑन एंडिंग नोट, आपने टेक्निकल स्किल्स की बहुत बात की है, लेकिन आप ये भी बताएं कि टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ डू यू थिंक किसी भी जॉब में भी, लेकिन स्पेसिफिकली डेटा इंजीनियरिंग की जॉब में सॉफ्ट स्किल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है? और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप किस उसमें क्या, अगर आप ज्यादा बेहतर कम्युनिकेटर हैं, टीम प्लेयर हैं, तो आप आपके चांसेस ऑफ गेटिंग दैट जॉब क्या वो ज्यादा हैं? तो इस पे भी थोड़ी सी बस जल्दी से आप अगर कंक्लूडिंग नोट पे बात करते हैं। हाँ, आई थिंक सिर्फ डेटा इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं है, लेकिन जनरली आप अगर टेक फील्ड में हैं या जनरली अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो ये चीज कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपने डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट करना है। एंड एक डेटा इंजीनियर के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। समटाइम्स आप प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कर रहे होते हैं, या समटाइम्स आप नॉन टेक्निकल बिजनेस पीपल होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं। तो उनसे रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से लेनी है, या किस तरीके से आपने अपना काम इन अ नॉन टेक्निकल वे उनको एक्सप्लेन करना है। तो ये हमें मतलब एज अ डेटा इंजीनियर्स ये काफ़ी ज़्यादा आपको फेस करना पड़ता है। सो आई थिंक कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप आपके क्वेश्चंस जो हैं वो शुरू से आप अपने क्वेश्चंस बना के रखें कि आपने क्या क्या पूछना है, और
आई थिंक एक क्लियर कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और टीम प्लेयर बहुत ज़्यादा, और आई थिंक इसमें प्रॉपरली आप आगे आने वाले लोगों के लिए प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके रखें अपनी सारी चीज़ें, ताकि उनको आगे आके मतलब ये ना करना पड़े कि वो अपनी जॉब भी करें और वो साथ-साथ जो है वो भी देख रहे हैं कि अच्छा शुरू से जो है वो ये काम इस बंदे ने किस तरीके से किया था। तो ये बहुत डॉक्यूमेंट करना अपनी सारी चीज़ों को डे टू डे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक या इसके हवाले से मतलब स्पेसिफिक टू डेटा इंजीनियरिंग नहीं है कुछ भी। जनरली अगर आप टेक फील्ड में हैं तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, और बहुत दफ़ा हाँ, मतलब टेक्निकल लोग बहुत दफ़ा ये चीज़ लैक कर रहे होते हैं, एंड आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा होंगे कि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगले को समझाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक मेरे अंदर भी थोड़ी-सी है ये चीज़। लेकिन और आगे सामने जो काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्शन करना पड़ता है हमें नॉन टेक्निकल पीपल के साथ, जो कि लाइक बिज़नेस डिसीजन मेकर्स होते हैं या लाइक एग्ज़ीक्यूटिव्स होते हैं। तो उनको नॉन टेक्निकल वे में अपनी बात समझाना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, जो कि मतलब लाइक आपको उनके लेवल तक आकर समझाना आना चाहिए। और ये मतलब काफ़ी हेल्पफुल होता है, ताकि वो भी मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल जार्गन से बहुत ज़्यादा घबरा ना जाएँ कि अच्छा क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ शुरू में लैक करते हैं लोग कि हम मतलब किस तरीके से बताएँ। क्योंकि हमें मतलब इतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज है लेकिन अगले को नहीं है, तो हमें मतलब हमने मतलब जैसे सारी ज़िंदगी अगर लाइक ओवर द कोर्स ऑफ लेट्स से बैचलर्स जो है वो सारे अपने बैचमेट से बात की है, तो हमें मतलब नॉन टेक्निकल वे में नहीं समझाना आता। तो आई थिंक ये ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ समझ आए। तो आई थिंक कम्युनिकेशन अगेन ये भी चीज़ कम्युनिकेशन में ही आ जाती है। तो I think we lost Maliha again. But just to conclude, honestly, उनका भी time बहुत important है. We requested her for an hour, so we're not going to take more than hour. हमने थोड़े से और minutes extra उनसे ले लिए. But then, yes, soft skills are very important. हम भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं. So 70% part आपका communication skills, आपकी interview कितना strong है, portfolio में क्या है, CV में आपने किस तरह बात की हुई है, that's also very important, and that entirely depends on how you communicate your ideas, how you communicate your skills, your experiences. तो आज हमारा यही मेनली एजेंडा भी इस वेबिनार कंडक्ट करने का यही था कि आप प्लीज वुमेन डेटा इंजीनियर से भी सीखिए अपनी कम्युनिटी में, इफ यू एनी वुमेन डेटा women who are aspiring to be data engineers, data scientists, or are trying to come into this field, आप प्लीज उनके साथ ये शेयर करें, उनको इनकरेज करें। एटम कैम्प की वेबसाइट प्लीज चेकआउट करें। अगर हमारे कोई कोर्सेज हैं, कोई इस तरह की चीजें हैं जो आपको एक्साइट करती हैं, तो आप प्लीज सेंड अस an email, message, whatever, and we'd love to help you जिधर भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे डेटा इंजीनियरिंग का बूट कैंप भी आ रहा है, इन केस आप उसको चेकआउट करना चाहते हैं तो प्लीज चेकआउट करें। We give a lot of opportunities for data, आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करने का बहुत चांस देते हैं। सो परहैप्स आप उधर से भी ये सारी चीजें सीख सकते हैं। एंड द की इज लर्निंग, आप कहीं से आप स्टार्ट करें, लर्न करें, एंड देन द रेस्ट विल फॉलो। So thank you so much all for joining. I hope you all found today's conversation insightful. आपको आज की डिस्कशन से आपने कुछ सीखा होगा, मैंने बहुत सारा कुछ सीखा है, तो होपफुली आपने भी सीखा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर joining us, and you should go enjoy the rest of your weekend, and I hopefully आप you learned something from this conversation. Thank you. Lafis. वुमेन ने हमें आज ज्वाइन किया, आई वुड रियली इनकरेज कि आप प्लीज चेकआउट करें, लर्न करें इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज से, वुमेन हु आर मेकिंग इट बिग ऑलरेडी इन देयर फील्ड। Hi, Maliha. I'm so sorry we lost you again, but not going to take your more time. And thank you so much for joining. Absolutely a pleasure and lovely meeting you. Amazing work that you're doing. और आपने जिस तरह बात की थी कि communication skills बहुत जरूरी होती हैं, I think आपने बहुत अच्छी तरह explain किया, and you're actually standing out as well in your field. आप बहुत amazing काम कर रही हैं।
And thank you for guiding our audience today as well. It was truly an honor for Atom Camp to host you, and would love to stay in touch and also always learn from you and watch your journey and see you grow. Thank you so much. Thank you. Thank And you. Laugh is Allah sorry, sorry, Hafiz. please. No, no, you were Yeah. about to say something. या सॉरी मैं बस ये हाईलाइट करना चाहती थी कि अगर मैंने कोई चीज़ कवर नहीं की तो प्लीज़ डू रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन और या मतलब मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर आपके क्वेश्चंस यहाँ कवर नहीं हुए हैं आई वुड लव टू लाइक रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस एंड मैं खुद भी चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपस्किल हों इन द फील्ड ऑफ डेटा इंजीनियरिंग और इस फील्ड को ज्वाइन करें और इस फील्ड में मतलब अपना व्यू पॉइंट या अपनी लाइक कोलैबोरेट करें इस फील्ड में सो या प्लीज प्लीज डू Very, very चेक आउट sweet of you. Very, very sweet of you, Maliha. I think सब please you go check out Maliha's LinkedIn. आप उनको follow भी करें, उनसे सीखे भी उनकी learning से, उनकी experience से, and I think आप उनको reach out. That's very, very honestly आपका बहुत very nice of you. आप offer करें, very generous of you. Thank you so much, Maliha. Please enjoy your rest of the weekend, and honestly, all the best for your future. थैंक यू सो मच थैंक यू Love बस Bye. बस